Hello, Che, good morning. So, this is session 9 today, and today we will discuss the topic sequence in series. This is the second day today of the topic sequence in series. As I promised, my dear, we will allot 2 days in sequence in series, and this is the second day today. So, I have to discuss some more questions. This is the practice session, So, this is the practice session. In my earlier lecture, we have told about, and today we will discuss geometric series as well as harmonic series and question on the basis of that. Okay, look here. For GP, बच्चे, listen, Tn is what? Tn is AR to the power n minus 1, and Sn is what? Sn is A into R to the power n minus 1 upon R minus 1. This is the sum of n term where R must be bigger than 1. Hayana, is it okay to all? And Sn, it is also A into 1 minus R to the power n upon 1 minus R. Right now, so modulus of R is less than 1, बच्चे. Modulus of R is less than 1. In case of infinite, suppose करो in case of infinite, so n infinite, n tends to infinite, it is A into 1 minus R to the power n upon 1 minus R. So finally, this part will be 0 because R is less than 1. So this part will be 0. So answer is what? A upon 1 minus R is if in case of infinite GP. Infinite GP में क्या होता है? A upon 1 minus R होगा बच्चे. हाँ या ना? Is it okay to all? Show your thumbs up sign. Show your thumbs up sign बच्चे. तो ये हो गया. GP की बात करेंगे. अब एक बात सिंपल सी बात जान लो बच्चे. You must be aware about that. 3 unknown term in GP क्या होगा? और फर्स्टली जैसे हमने AP में बताया था, है ना, as I told you earlier in case of AP बच्चे. So similar to GP, if any quantity is multiplied or divided to, if any quantity multiplied or divided to each term of a GP, resulting series must be in GP. हाँ या ना? So thumbs up sign. हाँ या ना? मैंने कहा if any quantity is multiplied or divided to each term of a GP, resulting series must be in GP. सही है? Is it okay ना? Then next one, 3 unknown terms in GP, 3 unknown terms in GP. In GP क्या होगा बच्चे? ये हो गया आपका A upon R, it is A and now it is AR. 4 unknown होगा तो क्या करो? 4 unknown terms in GPR, it is AR, it is AR cube, it is A upon R and it is A upon R cube. So this is 4 unknown term in GP is this. Just like here बेटे ऐसे मान लोगे ये हमारा mid point हो गया. It is A, so this will be AR, this will be A upon R, right now. And 5 unknown term की बात करोगे, 5 unknown terms in GP, in GPR, what will be here? So it is A, it is AR, it is AR square, it is A upon R and it is A upon R square, right now. So these are the 5 unknown terms in case of GP. Now बच्चे AP HP की बात करेंगे. It is completed now. For HP बच्चे, for HP की बात करोगे. आ जाओ for harmonic progression. आप जानते हो there is no special rule for harmonic progression. समेशन के लिए हार्मोनिक में कोई आपका स्पेशल रूल नहीं होता बच्चे. तो यहाँ Tn की बात करोगे तो Tn हो गया Tn ऑफ क्या बच्चे? Tn ऑफ HP, Tn ऑफ HP का Tn निकालना है तो 1 बाई Tn ऑफ AP, इसको निकालोगे 1 बाई Tn ऑफ AP की बात करोगे, उसका nth टर्म HP का और AP का n टर्म लिखोगे तो दिस विल बी क्या हो गया? सेम. हाँ या ना? nth टर्म चाहिए HP का बच्चे. दिस विल बी 1 अपॉन nth टर्म ऑफ AP. सो दिस वन बच्चे एक कंडीशन यहाँ हो गया. बाकी इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे. अब लिखते हैं बच्चे क्या? लेट एम जिम की बात करेंगे. अब लिखते हैं क्या? रिलेशन बिटवीन. अब लिखता हूँ बच्चे क्या? रिलेशन बिटवीन एम जी एम एच एम, रिलेशन बिटवीन एम GM and HM.
रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM। अब इसके रिलेशन की बात करोगे तो क्या बनेगा बच्चे, लेट टू नंबर्स, यहाँ से लिखो बच्चे AM, इसकी बात करेंगे। अब इसकी बात करें बच्चे, यहाँ लिखूंगा मैं AM, ये हो गया आपका GM, ये बन गया हार्मोनिक मीन, ठीक है ना। तो सीधे लिखता हूँ बच्चे क्या यहाँ पे A प्लस B बाई 2, इट इज AB टू द पावर हाफ, it is 2 upon 1 upon A plus 1 upon B, right now. So 3 term, if there be 3 term A plus B plus C upon 3 is arithmetic mean. Here AB to the power, ABC to the power 1 by 3, ABC to the power 1 by 3, and it is 3 upon 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C. Hi Anna, tell me bache, is it okay to all? Is it okay to all bache? So summation of AI upon N, it is pi of AI, I equals to 1 to N, I equals to 1 to N, I equals to 1 to N. So this will be 3 upon 1 by summation of 1 upon AI, I equals to 1 to N, this one. तो ये हो गया आपका AM, GM, HM की बात किया बच्चे। लिसन नाउ अगेन, सिंपल सी बात करोगे, AM क्या AM क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका A प्लस B बाई 2, इसे A मान लो। GM क्या बच्चे, GM हो गया आपका AB का स्क्वायर रूट, इसे G मान लो। HM क्या है बच्चा, HM अपने पास हो गया ट्वाइस ऑफ AB अपॉन A प्लस B, इसे H मान लो। अब रिलेशन की बात करेंगे तो रिलेशन की बात करेंगे तो A इंटू H इक्वल्स टू व्हाट, A इंटू H होता है बच्चे A प्लस B बाई 2, राइट ना। यहाँ 2AB अपॉन A प्लस B। अब यहाँ से कुछ नहीं करने का बच्चा, देखो तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये 2 कैंसिल आउट, विल बी फाइनली AB। सो A इंटू H क्या हो गया, A इंटू H हो गया आपका AB, AB का मतलब हो गया G स्क्वायर। सो A G H विल बी इन GP, विल बी इन GP, ये GP में होगा, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इस GP में होगा, हाँ या ना। अब यहाँ से देख बच्चे क्या करने का, अगेन A माइनस GM GP में होगा तो उसको ठीक कर बच्चे, GP में अगर होगा तो उसको ठीक करते हैं बच्चा। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चे, ये हो गया आपका G अपॉन A इक्वल्स टू H अपॉन G, ऐसे लिख सकते हैं आप। ये भी लिख सकते हैं A बाई G अपॉन G बाई H, ये लिख सकते हैं बच्चे। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द ट्रिक ऑल्सो, विच यू कैन अप्लाई इन द फॉर्मूला क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर सकते हैं इसको। अब यहाँ से देख बच्चे AM बिगर देन इक्वल टू GM बिगर देन इक्वल टू HM। अब ये कंडीशन देखते हो बच्चा, क्या करोगे, कैसे, हाउ इट विल कम, इससे प्रूव कर लिया जाए बच्चा। तो देखो तो यहाँ से लिखोगे AM A माइनस G, तो A प्लस B बाई 2 माइनस रूट AB, this one, so it will be root under A minus root under B and whole square by 2. So this is bigger than equal to 0, this is bigger than equal to 0 बच्चे। and inequality holds the, क्या लिखो यहाँ पे, equality holds if numbers are equal, if numbers are equal at a point, किसी पॉइंट पे नंबर इक्वल होगा तो उस कंडीशन में आप इक्वलिटी होल्ड होगा बच्चे। सो A इज बिगर देन 0, A माइनस जी बिगर देन 0 जो बच्चे A माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो A इज बिगर देन H। सो हियर A अपॉन G इज बिगर देन इक्वल्स टू 1, सो G अपॉन H also bigger than here, from start from here बच्चे, similar to here, this also bigger than 1, so finally G is bigger than equals to H, or here A greater than G, so A greater than equal to G, G bigger than equals to H, so this is the answer and this is the answer बच्चे, and this is the formula you can apply here. Again one more formula is here बच्चे, root mean square, it is root mean square, roots mean square is bigger than equals to AM, is bigger than equals to GM, is bigger than equals to HM. ये करोगे तो रूट मीन स्क्वायर मीन्स व्हाट, इट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई 2,
it is bigger than a plus b upon 2, it is bigger than root ab, it is bigger than 2 upon 2ab upon a plus b. So this is also a formula which you can use when max or mean is applied in the question. किसी क्वेश्चन में मैक्स मीन चाहिए, अगर बाय द वे कोई टर्म हो उसको रेसिप्रोकल दिया हुआ रहे तो आप AMGM लगा सकते हैं. अगर इफ देयर बी अ फंक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल appears in a same equation, then you can apply root mean this formula, then you can apply this formula बच्चे. इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन अपन कहाँ करेंगे, जब आपका कोई टर्म और उसी का रेसिप्रोकल दिया रहा है वेरिएबल के फॉर्म में, तो उस कंडीशन में मैक्स और मीन निकालने के लिए इसको यूज़ करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं. राइट ना, राइट बच्चा. अब मैं देखता हूँ बच्चे यहाँ से अब रहेगा क्या. लिसन यहाँ से गौर से देख बच्चे, ये हो गया आपका, यहाँ से लिखो लाइन यहाँ पे, ये AP लाइन है बच्चा, ये लाइन AP का लाइन है बच्चा, AP का लाइन है, ये AP का लाइन है बच्चे. AP में इट इज़ 1A, it is A, it is A1, it is A2, it is A3, it is A4, right, it is A5, dot. Suppose it is A100, suppose it is A99, suppose it is A98 and like that. This one अगर ऐसा हो, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका B, ये B है बच्चे, ये A है बच्चे. ऐसे रहेगा तो क्या करोगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 की बात करोगे अप टू A100, इसकी बात करोगे तो ये दिस विल बी 100 ऑफ A प्लस B बाय 2. सो दिस विल बी 50 टाइम A प्लस B, 50 टाइम A प्लस B. हाँ या ना, ये हो गया आपका 50 टाइम मीन्स क्या हो, 100 टाइम अरिथमेटिक मीन, 100 टाइम अरिथमेटिक मीन हो गया बच्चा. और इसका नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, देखो तो नेक्स्ट में आ जाओ, इसका भी और काम लेंगे. अब इसको फिर से लाता हूँ बच्चे, इसे फिर से लाता हूँ बच्चे. यहाँ A हो गया दिस वन, ये हो जाएगा H1, ये हो गया H2, ये हो गया H3, डॉट, ये हो गया H98, H99, H100 एंड दिस इज B बच्चे, दिस इज B बच्चे. यहाँ कुछ नहीं करने का. लिसन अब यहाँ से देखो तो क्या करना बच्चे, अगर सपोज करोगे आपको प्रोडक्ट चाहिए A चाहिए इंटू H10 चाहिए, H100 चाहिए, A1 इंटू H100, दिस विल बी AB. A2 इंटू H99, इट विल बी AB. A3 इंटू H98, दोनों का सम 101 आ गया. देखो तो 101 है क्या, सो इट विल बी फाइनली AB. और यहाँ से लिख दो A100 इंटू H1, इट विल बी AB. अब देखो बच्चे, ये दिस इज द प्रैक्टिस बच्चे, दिस इज द ट्रिक बच्चे. इसको ट्रिक बना लो, लंबे क्वेश्चन के लिए आपको काम देगा, शानदार क्वेश्चन में काम देगा. दिस इज द ट्रिक बच्चे, राइट ना. तो मैंने कहा क्या, इसके साथ ये लोगे तो ये भी हो गया बच्चे, इसके साथ यहाँ उठाओ, इसको लाओ बच्चे, तो ये इसके साथ लाओगे, ये इसके साथ लाओगे, ऐसे लाओगे, ऐसे चलोगे. इसका H1 है, इसका A10 है बच्चे, इसका A2 है, H2 है, इसका 99 है बच्चा. ऐसे चलोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, है ना. H1 की बात करेंगे तो H1 के साथ ये आ गया दिस वन बच्चे. तो सबका प्रोडक्ट लोगे तो ये आ गया AB. हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल. आ रहा है मज़ा, मैथ का मज़ा लेते रहो, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा. अगेन अगर देता हूँ फिर से यहाँ पे, यहाँ लिखता हूँ A, ये हो गया A, ये हो गया आपका G1, ये हो गया G2, ये हो गया G3, ये हो गया G4, डॉट, G आपका 99, ठीक है, G100 या G ऐसे से आ गया बच्चे GN. ठीक है अच्छा, यहाँ हो गया B. आपको चाहिए क्या बच्चे, प्रोडक्ट चाहिए GP में, G1, G2, G3, G4, डॉट, GN. ये रहेगा, ये लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म बच्चे. तो सेकंड लास्ट ऐसे से चलते चलोगे तो टोटल प्रोडक्ट लोगे तो ये बनेगा AB टू दी स्क्वायर रूट AB होता है, उसका पावर n हो गया. सही है ना, इज इट ओके. ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे तो A रूट AB होता है बच्चे. तो n टर्म का यहाँ n GMs हमारे पास है, पावर इज n, इट विल बी फाइनली AB टू द पावर n बाय 2. ओके हाँ या ना बोलोगे. इज इट ओके टू ऑल. हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल. हाँ या ना. नाउ बच्चे अब आता हूँ मैं क्वेश्चन पे. यहाँ तक का ट्रिक हो गया, अब क्वेश्चन चलेंगे. क्वेश्चन कितना आसानी से बनेगा ये देखते बच्चे.
तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखो बच्चे आप क्वेश्चन देखोगे, मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन है, इसमें मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चे, हर तरह क्वेश्चन बहुत आसानी से बना लेंगे, ठीक है ना। अब देख बच्चे मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन में, क्वेश्चन कितना आसानी से बनेगा। देखो बच्चे, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर मतलब क्या हो गया, दिस वन, ये हो गया बच्चे फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का मतलब बच्चे जब भी बोलेगा पहले 3 आपका अननोन नंबर की बात करेगा तो ऐसे ले लोगे ए माइनस डी, ए प्लस डी, हाँ या ना। ओके, कम टू द मैसेज बॉक्स, हाँ या ना, राइट। तो सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर इन एपी इज 27, ये 27 बच्चा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 3a, तो a हो गया अपने पास कितना, a हो गया अपने पास 9, a हो गया 9 बच्चे। इस a से अपन काम भी चलाएंगे क्वेश्चन में, आपका जो है कुछ लेंदियर क्वेश्चन इसे बनाएंगे बच्चा, अभी और आगे इसको रिसर्च करेंगे। एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो सम ऑफ देयर स्क्वायर का मतलब हो गया a माइनस डी होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू व्हाट, 293। अब देखो बच्चे a स्क्वायर कितना बच्चे, a स्क्वायर हो गया अपने पास 81, तो ये 81 यहाँ से घटा दो बच्चा, 81 यहाँ से हटाओगे, यहाँ से 81 हटाओगे बच्चे, ये हटा दो इसको 81 को, तो इसमें से 81 घटाओगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 2, ये हो गया 1 2 1 2। सही है ना, ये 2 1 2 बचा बच्चे। अब देख क्या करना, 2 कॉमन हो गए तो यहाँ हो गया a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, नाउ दिस विल बी 2 1 2, इससे कैंसिल कर बच्चे तो ये हो गया 106, क्या बन गया बच्चे 106 बचा ना, 106 बचा बच्चे। a स्क्वायर का वैल्यू दे दोगे तो ये बनेगा 81 प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 106। सो व्हाट इज डी स्क्वायर बच्चे, तो डी स्क्वायर हो गया 106 और माइनस 81, फाइनली दिस विल बी 25 बच्चे। सो डी इज व्हाट, डी इज व्हाट बच्चे, डी इज 5 एंड माइनस 5, डी इज 5 एंड माइनस 5 एंड ए इज 9, ए इज 9। तो अब चाहिए क्या बच्चा, देखो तो फाइंड द टर्म, फाइंड द टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस अपने पास दोनों आ गया, तो रिक्वायर्ड टर्म्स क्या बच्चे, रिक्वायर्ड सीरीज क्या हो गया, रिक्वायर्ड सीरीज विल बी, रिक्वायर्ड सीरीज विल बी क्या है बच्चे, ए कहाँ अपने पास है, ए हो गया अपने पास 9, 9 प्लस 5 हो गया 14, और यहाँ हो गया 5 प्लस 9 प्लस 14, 5 4 9 चाहते नहीं, ये हो गया 4, यहाँ हो गया 4, दिस बच्चे यहाँ हो गया 4 9 14 या 14 9 4, ऐसे चलेगा, दिस वन या दिस वन है ना, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाओगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लाओगे बच्चा। अब यहाँ से क्वेश्चन बनाता हूँ, देखोगे क्या, यहाँ से क्वेश्चन बनाता हूँ बच्चे, इसको लिखता हूँ क्या, फॉर द सेम क्वेश्चन, फॉर द सेम क्वेश्चन इफ ए बी द ए बी द, ए क्या हमारे पास बच्चे बताओ, ए बी द, नहीं छोड़िए इसको, इसकी बात मत कीजिए, इससे हटाइए बच्चे, क्वेश्चन में बाद में आएंगे अपन, इसको हटा दो बच्चे अभी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब बच्चे हाँ ये क्वेश्चन देखो, जो मैं चाह रहा था यहाँ आ गया, जो मैं चाह रहा था उस क्वेश्चन में आ गया, हाँ या ना। तो देखो तो इसमें क्या है, मल्टीपल कंसेप्ट क्या है बच्चा, एक तो आपका सीक्वेंस सीरीज है, एपीजीपी की बात, एपी की बात कर रहा है, सेकेंड में उसका फंक्शन की बात भी कर रहा है, तो फंक्शन भी आ गया इस कंसेप्ट में, दो बातें आ गई, फंक्शन आ गया और एपी आ गया बच्चे। तो देख बच्चे क्या बोलना चाह रहा है, 4 नंबर्स की बात बोल रहा है क्वेश्चन में, सम ऑफ 4 नंबर्स इन एपी इज 48, तो 4 नंबर्स का मतलब a माइनस 3d, ओके, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d, दिस इक्वल्स टू हो गया 48, ये हो गया आपका 48। अब यहाँ से डी डी कैंसिल हो गया बच्चा, कैंसिल हो गया, तो 4a, a हो गया 12 48, a हो गया अपने पास 12, बिल्कुल सही है। एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम इज टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मिडिल टर्म, प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम का मतलब बच्चे 4 नंबर बच्चे, ये एक्सट्रीम हो गया, ये पहला हो गया आखिरी हो गया, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम, ये हो गया मिडिल टर्म, इसको मीन बोलेंगे, मीन। तो देखो बच्चे अब क्या बोल रहा है बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम का मतलब हो गया a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d, राइट, दिस अपॉन a माइनस डी, ये हो गया अपने पास a माइनस डी और a प्लस डी, राइट, ये हमारे पास है 27/35, ठीक है ना। अब इसको ठीक कर बच्चे, यहाँ से हटा दो बच्चा, ये हो गया कितना a स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर,
दिस अपॉन ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, राइट ना। ये हो गया आपका 27 अपॉन 35, इसको ठीक कर बच्चे तो 35 ए स्क्वायर आ गया, राइट ना। 35 ए स्क्वायर माइनस 9 इंटू 35 इंटू डी स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 27 ए स्क्वायर एंड माइनस 27 डी स्क्वायर। डी एक तरफ ले जा बच्चे, डी एक तरफ ले जा, डी इधर ले जा, और बाकी क्या बच्चे डी एक तरफ लाएगा तो इसको ऐसे लाओगे, इसको इधर लाओ, राइट ले जाओ, इसको ले जाओ राइट में और इसको ले जाओ लेफ्ट में। तो देख बच्चे क्या हो गया, 27 है तो ये हो गया आपका 8, 3 और 5, ये हो गया आपका 8 ए स्क्वायर, राइट ना। तो ये बन गया आपके पास 8 ए स्क्वायर, 8 ए स्क्वायर इक्वल्स टू वाट, 8 ए स्क्वायर इक्वल्स टू वाट बच्चे, यहाँ से होती है 27, 9 कॉमन लोगे तो यहाँ से बनेगा 35, 35 माइनस में 27 माइनस में 3 डी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका 32, 8 चौ 32, ये कैंसिल हो गया बच्चा। अब यहाँ से देख बच्चे 9 चौ 36 हो गया। अब ए स्क्वायर की बात करोगे, ए अपने पास कितना था, 12 है बच्चा, तो ये हो गया आपका 12 इंटू 12, ये हो गया 9 इंटू 4 डी स्क्वायर। अब देखते बच्चे यहाँ से क्या करोगे, ये हो गया 9 चौ 36, इसको लिखोगे 144, 144 लिखोगे तो इसका हो गया 4 टाइम, ठीक है ना, 34 दिस वन। ये बनेगा आपका डी स्क्वायर, डी का 2 वैल्यू आ गया, एक आ गया 2, एक आ गया -2। अब देखो बच्चे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, इफ डी बिलोंग्स टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डीपी, डीपी का लार्जेस्ट नंबर चाहिए बच्चा। तो लार्जेस्ट नंबर क्या बच्चा, लार्जेस्ट नंबर देखो क्या बनेगा, तो लार्जेस्ट नंबर दिस इज ए प्लस 3d, ए प्लस 3d की बात करोगे तो यहाँ से ए अपने पास कितना बच्चे 12 है, ए अपने पास 12 है, अब प्लस 2 हो गया तो ये हो गया आपका 14, नो क्या हो बच्चे ए प्लस 3d है ना, तो ये हो गया 6, ये हो गया 6, 12 प्लस 6, ये बन गया 18। आप a माइनस 3d लोगे तो यहाँ से भी हो गया 12 है, अब माइनस में -6 हो गया बच्चा, तो +6 हो गया, ये 18 हो गया, ये लार्जेस्ट नंबर हो गया। अब चाहिए क्या बच्चे, d बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव, d बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव की बात कर रहा है बच्चे। अब इस क्वेश्चन में देखो तो क्या बनेगा, यहाँ से अपने पास हो गया d हमारे पास हो गया कितना, डिफरेंस हो गया 2, तो fx का वैल्यू है, fx का वैल्यू है 10 टू द पावर x, 10 प्लस 10 टू द पावर x, राइट ना। अब इसको ठीक कर बच्चे, d माइनस एक्स की बात कर रहा है, यहाँ से d माइनस एक्स की बात कर रहा है बच्चे, तो d माइनस एक्स, ये हो गया आपका 2 माइनस एक्स, ये हो गया बच्चे क्या देखो तो ये हो गया 10 टू द पावर 2 माइनस एक्स, ये हो गया 10 प्लस 10 का पावर 2 माइनस एक्स। इसको सिस्टमेटिकली ब्रेक करोगे तो ऊपर हो गया आपका 10 प्लस 10 का पावर x हो गया बच्चे, दोनों को ऐड कर दोगे तो fx प्लस f2 माइनस एक्स की बात करोगे तो ये बनेगा आपका 10 प्लस 10 टू द पावर x एंड 10 प्लस 10 टू द पावर x, ये कैंसिल आउट, आंसर हो गया 1, हाँ या ना, टेल मी हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, जयदीप, श्वेता, साक्षी, सेजल, हरप्रीत, इज इट ओके बेटा, इज इट ओके ना। आइए देख बच्चे क्या करने का, नंबर 3 आ गया बच्चे, 28 इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, तो 28 को 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d, ये 28 को 4 पार्ट में डिवाइड करोगे आप, ऐसे डिवाइड किया बच्चे तो ये हो गया अपने पास 28, तो ये कैंसिल आउट बच्चे, ऐसे कैंसिल आउट हो गया, तो 4a, तो a कितना हो गया बच्चे 728, a हो गया 7, बोलो हाँ या ना, 28 हो गया बच्चे। द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, अब क्या बोल रहा है बच्चे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, ये हो गया a माइनस 3d और a प्लस d है ना, इज टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड हो गया a माइनस d और a प्लस 3d, दिस वन, ये करेंगे कितना बच्चे, ये हो गया अपने पास 8/15, यहाँ कुछ नहीं करने का। अब यहाँ से देख बच्चे क्या करोगे, a स्क्वायर माइनस 3ad प्लस ad माइनस 2ad, राइट, माइनस 3d स्क्वायर, बिल्कुल सही है बच्चे। यहाँ से फिर से करोगे तो ये हो गया a स्क्वायर 3ad, तो ये हो गया प्लस 2ad और माइनस में 3d स्क्वायर, माइनस में 3d स्क्वायर हो गया बच्चे, ऊपर भी 3d स्क्वायर, राइट ना। अब ये बन जाएगा 8/15, अब यहाँ से निकालो बच्चे,
अब यहाँ से तो निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं ना। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, ए पता है, डी निकाल लो बच्चा। ए अपने पास कितना है, ए अपने पास 7 है, तो डी निकाल लोगे, आपका बात बन जाएगा, बन जाएगा है ना। वहाँ रख दो बच्चे, डी का काम हो जाएगा। इज इट ओके टू ऑल, कर लोगे ना। कम टू द मैसेज बॉक्स, बन गया तो डन लिखो, बन जाए तो डन लिखो बच्चे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बन जाए तो डन लिखेंगे आप। चलो ओके, श्रेयांश डन, श्रेयांश डन, ठीक है, जयदीप डन, नितेश आनंद डन। चलो बच्चे नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट उसी पैटर्न पे। देर आर 4 पॉजिटिव नंबर्स इन एपी, सम 4 पॉजिटिव नंबर्स बच्चे, कितने नंबर है, 4 पॉजिटिव नंबर्स एपी में है बच्चा। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर एक्सट्रीम इज दिस वन। क्या है बच्चे, क्वेश्चन में अपने पास पॉजिटिव नंबर क्या क्या है, a माइनस 3d है, a माइनस डी है, a प्लस डी है, a प्लस 3d है। ये हमारे पास 4 एपीज है बच्चे, ये हमारे पास अननोन टर्म इन एपी है। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर एक्सट्रीम्स। अच्छा, इस दोनों का जो स्क्वायर है बच्चा, इसके स्क्वायर की बात बोल रहा है। a माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर, दिस बिकम्स क्या बच्चे, ये हमारे पास है 270, 272, ये अपने पास आ गया। अब इसको चेक करो बच्चे, तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर, दिस इज 272। यहाँ से 2 कैंसिल आउट करोगे बच्चे तो क्या हो गया, ये हो गया 136, सही है ना, चेक कर लो आप। 6 दूनी 12, 3 6 7, ठीक सही है बच्चे। अब देखो बच्चे, यहाँ से कंडीशन बना आपका a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर इक्वल टू 136, ये बन गया एक कंडीशन। अगेन सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर मीन्स, मीन मतलब हो गया, ये दोनों मीन हो गया बच्चे। इस दोनों की बात करोगे तो ये दोनों क्या हो गया बच्चा, ये दोनों मीन हो गया। इसके स्क्वायर्स की बात कर रहा है तो ये हो गया आपका a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट इज 208, ये बनेगा 208। तो यहाँ से क्या बना बच्चा, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दिस इज 208 राइट ना। तो ये बनेगा 104, 104 हो गया। तो यहाँ हो गया बच्चे a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज 104। अब इसको मान लो सेकंड। अब देखो बच्चा, अब इससे सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करो बच्चे तो क्या बनेगा अपने पास, देखो तो यहाँ माइनस करोगे, माइनस करोगे तो ये साफ हो गया, ये बन जाएगा 8d स्क्वायर इक्वल टू 136 है बच्चा। तो क्या बनेगा 32, ये बनेगा 32, 8 चौ 32, ये हो गया 4। तो d का जो वैल्यू आया, एक आ गया 2, एक आ गया -2, हाँ या ना। अब d का वैल्यू आ गया बच्चे, तो a का वैल्यू निकाल लो बच्चा। तो a का वैल्यू देखो तो क्या आ गया, d का वैल्यू रखोगे, d स्क्वायर 4 है बच्चे, d स्क्वायर 4 है तो 104, 104 में से 4 गया 100 हो गया। a स्क्वायर हो गया +10 और -10। तो आप पास कितने ए पी आएंगे, 4 टाइप आएंगे। दोनों पॉजिटिव ले लो, ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव, दोनों निगेटिव ले लो, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ऐसे लोगे तो 4 तरह का डीपी बनेगा, 4 तरह का आपका सीरीज बनेगा। स्टेट द नंबर, तो नंबर बताना है बच्चे, क्या करने का, नंबर देखो तो बच्चे क्या बना, इसको मानता हूँ ए को डी 10 मान लिया बच्चे और डी को 2 मान लिया। तो यहाँ हो गया 10 + 2 हो गया 12 और 10 + 3d है बच्चे, तो क्या होगा बच्चे 6, 16, ये हो गया 8, ये हो गया 4, 10 - 3d, 10 - 6 4, ये बना, या 16, 12, 8 और 4, ये हो गया आपका डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग हो गया बच्चे, ये इंक्रीजिंग हो गया बच्चा। ऐसे ऐसे बनेगा, नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव से बनेगा, हाँ या ना। कुछ भी नहीं कहा तो वो भी बन सकता, दो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लो, बन जाएगा ना, बन जाएगा बच्चे। आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट आ जा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। आप देखो बच्चे, इस पैटर्न पे लास्ट क्वेश्चन है, फिर पैटर्न चेंज करेंगे। इस पैटर्न पे लास्ट क्वेश्चन है बच्चा। यहाँ क्या बच्चा देखो तो 5 नंबर्स आर इन एपी, 5 नंबर है तो a - 2d, a - d प्लस a प्लस d और a + 2d, दिस वन, ऐसे आ जाइए आप। और ये वैल्यू हमारे पास, ये हमारे पास है, सम इज 25, ये सम हमारे पास है, ये कैंसिल है कैंसिल है कैंसिल है, 5a 25 है तो a हो गया अपने पास 5, ठीक है ना। एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस, प्रोडक्ट क्या बच्चे 250 है बच्चे, 2520 है प्रोडक्ट इसका, a × a - 2d, a + 2d, a - d और a + d, ये प्रोडक्ट है बच्चा 2520, ये प्रोडक्ट इसका हो गया। अब चेक कर बच्चे, यहाँ 5 है,
इसका वैल्यू 5 होता है, तो 5 से हो गया 25, है ना, 504, ये हो गया 504। इसकी बात करोगे तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर एंड दिस इज ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 504। अब यहाँ से देख बच्चे ए स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर है 5, ए 5 है बच्चे, तो यहाँ से ठीक करोगे तो ये हो गया आपका 25 माइनस 4d स्क्वायर, ये बनेगा आपका 25 माइनस डी स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 504। यहाँ से देख बच्चे क्या हो गया 625, तो ये बनेगा 625, राइट ना। यहाँ से 25 100 125 125 डी स्क्वायर, अब प्लस में हो गया आपका 4d4 इक्वल्स टू 504। इसको ठीक कर बच्चा, ये बनेगा 4d4 माइनस 125 डी स्क्वायर, अब प्लस कितना बच्चे देखो तो यहाँ से 121 हो गया क्या, तो 121 हो गया प्लस में देख तो बच्चा सही है क्या, बिल्कुल सही बच्चा। तो 121 इंटू प्लस 4 है बच्चे, तो 125 आ रहा है, तो ये डायरेक्टली सेट हो गया। 4d स्क्वायर कहाँ गया, ये अपने पास 4 है बच्चे, पावर 4 है, ये पावर 4 है बच्चा, तो 4d स्क्वायर माइनस 121 इंटू डी स्क्वायर माइनस 1, चेक कर बच्चा सही है कि नहीं, 4d स्क्वायर 4 अब माइनस दिस प्लस, राइट सही है बच्चा। तो यहाँ से d का 2 वैल्यू आया बच्चे, तो d का वैल्यू आया, एक वैल्यू आ गया यहाँ से 1 और माइनस 1, अगला d का और वैल्यू आया बच्चे 121, दिस है बच्चा d स्क्वायर है, तो ये हो गया 11 बाई कितना 11/2, ये बनेगा 11/2 और माइनस 11/2। अब क्वेश्चन में क्यों देखो क्या है, क्वेश्चन में है ना, वन ऑफ द नंबर बीइंग 5 इज माइनस हाफ, इसमें से एक नंबर है बच्चे -5 है, तो देख बच्चे -5 कैसे आएगा, ए अगर 5 है और d1 लोगे तो इसको काट कर दो, इसको रिजेक्ट करो, ये रिजेक्ट हो गया बच्चा। तो -5 लाने के लिए आपको इसका सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो देख तो बच्चे कोई एक नंबर उठाते हैं, a + 2d उठाते हैं बच्चे, a + 2d लिया हमने, a + 2d लिया ना, a हमारे पास कितना है बच्चा, a हमारे पास 5 है, और 2d की बात करेंगे तो ये हो गया कितना, a + d, a + 2d नहीं, a + d की बात करो, a + d की बात करो बच्चे, देखो तो क्या बना, d a + d चाहिए माइनस d की बात करोगे तो 5 माइनस 11/2, ये बन गया माइनस हाफ, ऐसे लोगे या a माइनस d लोगे तो ये भी आपके पास माइनस हाफ आ गया बच्चा। तो कोई ले लो, a माइनस d ले लो, चाहे a + d ले लो, इसे यूज़ करो या इसे यूज़ करोगे, इसका मतलब अपने पास जो आंसर आएगा क्या आया, है ना, ऑल्सो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ये कंडीशन आ गया। अब लार्जेस्ट नंबर क्या बच्चे, तो लार्जेस्ट नंबर हो गया हमारे पास a + 2d इज द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। a अपने पास कितना बच्चे, a अपने पास 5 है, और अपन इसको यूज़ कर रहे हैं बच्चा, देखो तो इसको यूज़ कर रहे हैं क्या, नहीं इसके लिए ये यूज़ कर रहे हैं बच्चे, देखो तो d, अच्छा नहीं दोनों यूज़ कर रहे हैं बच्चे, तो यहाँ हो गया 2d, ये हो गया 11, 11 पास 16, 2d हो गया 11 बच्चे, तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया बच्चे, लार्जेस्ट नंबर यही आ गया। अब पूछा जाता मिनिमम नंबर क्या होता, तो -6 हो जाता। अगर पूछा जाता मिनिमम नंबर, मीन ऑफ a + 2d, तो ये क्या होता बच्चे 5 - 11 हो जाता, तो ये हो जाता -6, ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर, ये हो गया लिस्ट नंबर, सही है ना। इज इट ओके टू ऑल, आ रहा मज़ा, अब ठीक है, अब ठीक है ना। स्लाइड सीधा करो सर, सीधा तो है बेटा, इज इट ओके ना। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चे, थोड़ा फास्ट करते जाओ, क्लास के बाद ऐसे ही मैं भेज दूंगा। पैटर्न चेंज हो गया, देख बच्चे पैटर्न चेंज हुआ। अब यहाँ से देख बच्चे लॉग लगा हुआ है, लॉग लगा हुआ है, आप जान लो बच्चे कोई भी सीरीज अगर जीपी में होगा लॉग लगाएंगे तो एपी हो जाएगा, हाँ या ना। इफ एनी ऑफ द सीरीज गिवन इन जीपी अप्लाइंग लॉग, ठीक है, इन ईच देन इट विल बी इन एपी, तो लॉग लगा हुआ बच्चे एपी में है, तो लॉग हटा दो ना, जीपी हो जाएगा, हाँ या ना। गुड, अपन क्या करते बच्चे, लॉग हटाते बच्चा, तो लॉग हटाते बच्चे तो जीपी एपी हो गया, तो 162, x y z 1250 विल बी इन जीपी, ये जीपी हो गया बच्चे। तो ये देखो तो बच्चे ये कौन सा टर्म है, ये T5 है, ये T1 टर्म बच्चे, ये आपका T2 है, ये T3 है, ये T4 टर्म बच्चा, है ना, ये आपका T4 टर्म, ये T4 टर्म है। आप देखो बच्चे क्या किया, T5/T1 ये हो गया 1250 अपॉन 162, तो देख दो बच्चे क्या बनेगा, यहाँ से जीपी सीरीज है तो यहाँ हो गया AR4 अपॉन A,
ये हो गया, कुछ कटेगा क्या, 1250 अपॉन 162 है बच्चा, कटेगा तो ये हो गया 81, ये हो गया 625, बिल्कुल सही बच्चे, ये ऊपर बन गया 625, वेरी गुड, ये कैंसिल आउट। तो देखते बच्चा क्या हो गया, R4 हो गया हमारे पास, R4 हो गया 5/3 का होल 4, R हो गया आपका 5/3, R हो गया अपने पास 5/3, बोलो तो बच्चे हाँ या ना। अब आपको जो चाहिए निकाल लीजिए, आपको x चाहिए बच्चा, x क्या है, x अपने पास T2 है बच्चे, T2 होता है AR, A अपने पास कुछ है क्या, A अपने पास 162 है बच्चे, R कितना है, R अपने पास 53 है, 5/3 है, यहाँ से काटोगे 3 × 5 = 15, 5 3 × 12 54, ये हो गया 520, 25 26 27 270, ये आंसर हो गया, बोलो हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, वाई निकालना है, वाई निकाल सकते हैं, वाई भी निकाल सकते हैं, जेड भी निकाल सकते हैं, आपको क्वेश्चन में एक्स पूछ रहा है, आप वाई जेड भी निकाल सकते हैं बच्चे जरूरत पड़ने पर। अब इसी क्वेश्चन में रहता कि फाइंड द डिवाइजर ऑफ एक्स, यहाँ रह सकता है बच्चे, अलग से रहेगा एस एम डी, एस एम डी का मतलब हो गया स्टेट फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर ऑफ एक्स, एक्स का सम ऑफ डिवाइजर बताओ, तो क्या करने का, एक्स अपने पास आ गया ना बच्चा, एक्स अपने पास कितना है 27 × 10 है बच्चा, तो ये हो गया 2 × 3 का पावर 3 × 5। अब सम ऑफ डिवाइजर चाहिए, तो सम ऑफ डिवाइजर बच्चे देखो तो क्या हो गया, 2 लोगे चाहे मत लो, है ना, 5 लोगे या नहीं लोगे, 3 लोगे या नहीं लोगे, ये आंसर हो गया, यही आंसर हो गया बच्चे, बोलो हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देख बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करोगे, ऐसे अर्लियर क्लास में हमने ऐसा बनाया था बच्चे, आ जाइए अपन देखते हैं बच्चे क्या बोलने का क्वेश्चन में। A1 A2 A3 A4 आर इन AP, तो ये दिया हुआ बच्चे, तो ये हो गया A1 + A2 + A3 + ... A21, ये है आपका 693। देख बच्चे अप टू 21 टर्म का सम दिया हुआ है, तो 21 का सम दिया बच्चे, तो इसको पूरा निकाल लोगे, तो ये बनेगा ए, इसको ठीक करोगे तो ये हो गया A, ये हो गया A + D, ये हो गया A + 2D, ऐसे चलता रहेगा। A हो गया 21 टाइम, तो 21 टाइम A हो गया, इन अगेन 1 + 2 + 3 अप टू 20 ऑफ D, ये हो गया आपका 693। यहाँ ठीक कर बच्चा, इसे ठीक करोगे तो 20 × 21/2, ये कट के हो गया 10, तो 21 कॉमन लो बच्चा, तो 21 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा बच्चे, देखो तो 21 कॉमन लोगे तो A + 10D, A + 10D, A प्लस हो गया 10D, इसका वैल्यू हो गया 693। कुछ कटेगा क्या बच्चे, यहाँ से कटेगा 63 3, है ना, दिस वन 33 हो गया बच्चे, इसका वैल्यू आ गया A + 10D का वैल्यू 33 हो गया, तो इसको 1 मान लो बच्चा। इन अगेन अब क्या चाहिए, सम ऑफ ऑड टर्म्स की बात कर रहा है बच्चे, इसकी बात करोगे देखो तो क्या बनेगा, M का वैल्यू अपने पास है A0 A1, ये हो गया आपका A1 A3 A5 A7 ... कितना बच्चे 21, तो ये हो गया A21, दिस इसका वैल्यू निकाल बच्चे, अल्टरनेट टर्म बच्चा, तो देखो तो क्या बनेगा, यहाँ से ये बनेगा A कितनी बार 11 टाइम A है बच्चा, 11 टाइम A बनेगा, अब प्लस यहाँ से बनेगा 2, ये बनेगा 4, ये बनेगा 6 ... यहाँ बनेगा 20, यहाँ बनेगा 20, ठीक है बच्चे, 20 ऑफ D, ठीक है ना। अब इसको ठीक कर बच्चे, तो क्या बनेगा देखो तो, ये बनेगा 2 बाहर निकाल लोगे, 2 बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा, 10 टर्म है, 10 × 11/2, तो 2 कैंसिल आउट। अब इसको ठीक कर बच्चे, देखो तो ठीक करोगे क्या, 11D कॉमन लो बच्चे, 11 कॉमन लोगे तो ये बनेगा आपका A + 10D, A + 10D, ये बना बच्चा। अब देखो तो A + 10D कुछ है क्या, ये 33 है बच्चा, इसका वैल्यू है 33। आंसर क्या हो गया, ये हो गया 363 हो गया बच्चे, देखो तो ये आंसर है क्या, ये 363 है क्या बच्चे। अब सम ऑफ डिवाइजर चाहिए बच्चे, अब सम ऑफ डिवाइजर चाहिए, आंसर यहाँ दिया है बट ये नहीं चाहिए, तो सम ऑफ डिवाइजर SOD चाहिए किसका बच्चे, इसकी बात कर रहा है, तो इसको भी काट के लिख दो 11 × 3 तो यहाँ देख बच्चे क्या बना, नंबर बना आपका 3 × 11 स्क्वायर,
इसका डिवाइजर चाहिए तो 3 लोगे या नहीं लोगे, 1 प्लस 11 स्क्वायर लिखोगे, ये देखो अच्छे कितना हुआ आपके पास, ये हो गया 4 इंटू 121 22 32 133 133, ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से हो गया कितना 3 चौ 12, 4 के 12 13, 4 1 5, 532 है क्या आंसर में, 532 फर्स्ट ऑप्शन है बच्चा, यही आंसर होगा, बोलो हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है मज़ा, मज़ा आ रहा है बच्चे, मैथ का मज़ा लेते रहो तो मैथ मज़ा ले लेगा, मैथ का मज़ा लेते रहिए बच्चे, नहीं तो मैथ आपका मज़ा ले लेगा। अब देख बच्चे 8 में क्या आ गया बच्चे, इसके बी द सम फ्रॉम द फर्स्ट टर्म टू केथ टर्म ऑफ एथमेटिक सीरीज विद द फर्स्ट टर्म यूनिटी एंड कॉमन डिफरेंस 1, पहला टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस भी 1 है बच्चे, तो ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ये सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चा। इसके भाई साहब है 1 + 2 + 3 अप टू के, तो ये बनेगा k इंटू के प्लस 1 बाई 2 हो गया बच्चे, बिल्कुल सही है। अब आपको ये चाहिए समेशन में 1 बाई एस के चाहिए बच्चा, k का वैल्यू 1 to कहाँ तक है, 1 to 100 तक है बच्चे, इसे लिखा गया m/n, इसे लिखा गया m/n, तो ये समेशन हो गया बच्चे, एस के हो गया उल्टा हो गया 2/k इंटू के प्लस 1, k अपने पास हो गया 1 to 100, इसको और ठीक कर बच्चा, तो 2 बाहर निकालोगे, इसको ब्रेक करो बच्चे, तो ये हो गया 1/k माइनस 1/k प्लस 1, ये k अपने पास हो गया 1 to 100, इसको ठीक कर बच्चा, तो यहाँ ठीक कैसे होगा, ये हो गया 2 ऑफ m/n का वैल्यू हो गया 2 ऑफ, ये हो गया 1 माइनस 1/2, 1/3 माइनस 1/4, नो ये हो गया, देखो तो क्या बच्चे 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4 एंड डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा 100 तक, तो 1/100 माइनस 1/101 दिस वन। अब देख तो बच्चे क्या हुआ, यहाँ से दिस वन, यहाँ से दिस वन, यहाँ से दिस वन, यहाँ से दिस वन, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 1/101, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ, ऊपर हो गया 100, 100/101, तो ऊपर हो गया 200, 200/101, ये आंसर आ गया बच्चे। अब आपको चाहिए क्या बच्चे, मिनिमम ऑफ m प्लस n चाहिए, तो मीन ये अपने पास क्या था m/n था, तो m प्लस n का मीन वैल्यू क्या हो बच्चा, इसका मीन वैल्यू क्या हो गया बच्चे, मीन वैल्यू हो गया 200 प्लस 101, ये हो गया 301, बोलो हाँ या ना, ये आंसर हो गया हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है मज़ा, तो मैथ का मज़ा लेते रहो बच्चा, कितना मस्त क्वेश्चन था, कितना सिंपल दिख रहा है, ये अलग बात है बच्चे, ये क्वेश्चन सिंपल दिख रहा है, ये सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, सिंपल आपको दिख रहा है क्योंकि सिंपल तरीके से बताया जा रहा है। यही क्वेश्चन बुक में देखोगे तो एक एक पेज में लगेगा, अब पता नहीं क्या करते हैं लोग, वहाँ परेशानी होती है। अब देखो बच्चे क्या है, आपको दिखेगा भी, टफ से टफ क्वेश्चन भी 2-2 लाइनें बनेगा, है ना। द क्वेश्चन यू आर डूइंग इन ए पेज यू कैन डू इन ए लाइन, यही तो मैजिशियन है बेटे, यही तो मैजिक है आपका, यही मैजिशियन का कमाल है, यही मैजिक है। टफ क्वेश्चन को भी आप 2-2 लाइन में समेट सकते हैं, 3 लाइन में समेट सकते हैं। अब देखो बच्चे, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म ऑफ ए पी, तो यहाँ क्वेश्चन में है दिस वन इक्वल्स टू सम ऑफ 19 टर्म, ये हो गया 19 बच्चे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया ये। अब इसको ठीक कर बच्चा, 11/2 2a प्लस 10d, ओके 19/2, ये हो गया 2a प्लस 18d, दिस वन हाँ या ना, यहाँ से 2 गया बच्चे, यहाँ से 2 गया। अब देखते बच्चे क्या करेगा, तो ये हो गया आपका 22a प्लस हो गया 110d, ये हो गया 38a प्लस यहाँ से फिर से देखो बच्चे, ये हो गया अपने पास कितना 19 इंटू 18 इंटू 19 है बच्चा, तो ये हो गया 9×72, 2 हो गया 9×8 17 और 7 17 और 3 20 3 4 24 हो गया 4, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया 342, तो ये बन गया आपका 342d, राइट ना। ये हो गया बच्चे, देखो गौर से। अब यहाँ क्या करना बच्चा, ये हो गया अपने पास, यहाँ से इसको हटाओ बच्चे, यहाँ से ले जाओ राइट में, तो ये हो गया आपका 16a प्लस इसको 110 घटाओ बच्चे, तो 100 घटाओगे तो हो गया 242,
तो ये हो गया आपका 232 ऑफ डी बराबर 0। तो देख तो बच्चे 4 से जाएगा क्या, हाँ 4 से जाएगा बच्चे, 4 से जाएगा, हाँ 4 से जाएगा बच्चे, तो यहाँ 8 से डिवाइड हो जाएगा लगता है क्या, आ जाए पहले पहले 4 से हटाओ बच्चा, तो ये बनेगा 4a, ये हो गया 4 5 20, 8 चौ 32, 58, ये हो गया आपका 58d। चेक कर बच्चा, सही है ना, 8 चौ 32 अपान 24, 3 23, बिल्कुल सही बच्चा। अगेन फिर से इसको हटा बच्चे, 4 अभी और हटेगा 19, ये हो गया 27, 29 2a प्लस 29d, ये हो गया 0, इसको 1 मान लो बच्चा, इसको 1 मान लो। अरे यार बेकार बनाए, तो सिंपल क्वेश्चन था भाई, चलो कोई बात नहीं बच्चे। सम ऑफ फर्स्ट लास्ट 30 टर्म्स, अब आपको सम ऑफ 30 टर्म चाहिए बच्चा, तो सीधे आंसर 0 हो गया ना भाई साहब, तो ये हो गया 30/2 और ये हो गया 2a प्लस 29d, तो ये हो गया आपका 0, ये पार्ट हो गया 0। अब इसका ट्रिक देखो बच्चे, ट्रिक क्या देखोगे, अगर आपका SP बराबर SQ दिया रहेगा तो सम ऑफ SP प्लस Q की बात करेगा तो ये हो गया 0। SP बराबर SQ दिया रहे बच्चे, तो यहाँ पे सम ऑफ P दिस हो गया बच्चे, तो वहाँ पे देखो तो क्या दिया था, S11 दिया था बच्चे, S11 प्लस S कितना 19 है बच्चा, तो ये क्या बनेगा बच्चे, इसकी बात करोगे, इसकी बात सॉरी ये दोनों बराबर है बच्चा, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है बच्चे। तो अब इस दोनों का सम क्या करेगा, S हो गया 11 प्लस 19, तो ये क्या हो गया S30 हो गया बच्चा, इट मस्ट बी 0, बोलो हाँ या ना। तो अपन ट्रिक लगाएंगे तो ये बन गया, ये ट्रिक हो गया बच्चा, ये स्पेशल ट्रिक हो गया है ना। वैसे बनाने पर ऐसे आता है, टाइम वेस्ट हुआ वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, अब देख बच्चे क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन आ गया, अब देखो तो क्या करोगे आप। आइए बच्चे क्वेश्चन में क्या करने का, देखिए इफ द सम ऑफ द सीरीज गिवन एज दिस, ये हो गया S1 प्लस 5/11, 12/11 स्क्वायर, 22/11 क्यूब, 35/11 4, टू इन्फानाइट। अब कुछ नहीं करने का, अब यहाँ से देखो बच्चे क्या करना, अब यहाँ से ये ऊपर जो भी है बच्चे, नीचे GP दिख रहा है, तो जब GP दिख रहा है तो इसको बच्चे R से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 1/11 इंटू S। इसकी बात करोगे तो ये बन गया 1/11, 5/11 स्क्वायर, 12/11 क्यूब, 22/11 4, दिस टू इन्फानाइट। अब कुछ नहीं करने का, यहाँ से सही कर बच्चे, तो इसको माइनस करेगा तो ये हो गया आपका 10/11 S, ये बनेगा 1, ये बनेगा 4/11, ये बनेगा 7/11 स्क्वायर, ये बनेगा आपका कितना बच्चे 10/11 स्क्वायर, यहाँ से हो गया 13/11 स्क्वायर, 11 क्यूब, 11 4 एंड डॉट 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 टू इन्फानाइट। एक बार आपको और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऊपर देखो तो AP आ रहा है क्या, 4 + 3 7, 4 + 3 7, 7 + 3 10 एंड 13। एक बार और लो बच्चे, तो यहाँ से फिर से 1/11 करोगे तो यहाँ हो गया 10/11 स्क्वायर इंटू S, तो ये हो गया आपका 1/11, ये हो गया 4/11 स्क्वायर, ये हो गया आपका 7/11 क्यूब, ये हो गया 10/11 4, डॉट 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 डॉट, कुछ नहीं करने का। देखो बच्चे क्या बनेगा, यहाँ से हो गया आपका 10/11 बाहर करोगे, 1 - 1/11 हो गया, तो 10/11 फिर से आ गया ऑफ S। इसकी बात कर बच्चा, तो ये बनेगा 1, यहाँ से हो गया 3 बाहर कर दो, 3/3 बाहर करोगे तो 1/11, ये हो गया आपका 3 बाहर किया तो 1/11 स्क्वायर, 1/11 क्यूब, 1/11 4 एंड डॉट 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 डॉट, कुछ नहीं करने का बच्चे। देखो क्या करने का, तो ये हो गया 1 + 3/11, तो ये हो गया 1/1 - 1/11, ऐसे लोगे 3 + 3/11, ऊपर आ गया 11, नीचे हो गया 10, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ हो गया 33/10 हो गया बच्चे। अब यहाँ से इसको स्टार्ट करो, ठीक करोगे तो ये हो गया 121/100 इंटू 33/10, ठीक है बच्चा, ये अपने पास ऐसा आ गया बच्चे दिस वन। अब इसको मल्टीप्लाई कर बच्चा, देखो तो इसको मल्टीप्लाई करो, सही है क्या, चेक कर लो। नो, यहाँ से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ गया 11 कैंसिल, यहाँ 10 हो गया,
3/10 हो गया। यहाँ तो 1 था बच्चे, सॉरी यहाँ 1 था ना, यहाँ 1 था बच्चा, यहाँ 1 था बच्चे, यहाँ 1 था बच्चे, ये अपने पास हो गया 1, तो यहाँ से हो गया 10, 13 हो गया 13, तो ऊपर हो गया बच्चे 13। अब देखो तो क्या हो चाहिए, ऊपर हो गया 13, 26, 27, 27, 2, 13, 14, 15, 15, 1573 अपॉन, अपॉन कितना बच्चे देखो तो क्या हो गया अपॉन में 1000 अपॉन हो गया 1000। यही हमारे पास कुछ गिवन था, क्या ये कुछ गिवन था बच्चे, ये पी और क्यू था बच्चा, ये पी और क्यू था। तो देख बच्चे पी प्लस क्यू का वैल्यू क्या हो गया, तो ये हो गया 2573, ये आंसर हो गया। चेक करो तो है क्या 2573, यही आंसर है बच्चे, फर्स्ट आंसर हो गया। चेक करो, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल बच्चे, इज इट ओके टू ऑल। क्या है क्वेश्चन, फिर से देखोगे ये क्वेश्चन है बच्चा, देखो तो दिस इज द क्वेश्चन माय डियर, इज इट ओके। इसको बोलते हैं एजीपी, क्या बोलते हैं एजीपी, राइट ना। आर यू गेटिंग ऑल, आर यू गेटिंग ऑल बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब आइए एपी जीपी एचपी का कंबाइंड क्वेश्चन आ गया बच्चा, कुछ भी नहीं करने का, हमने अभी तुरंत बताया था बच्चे, ट्रिक बताया था यहाँ से कि यहाँ ए होगा, ये हो गया हमारे पास A1 A2 A3 AP में है, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 कहाँ तक है बच्चा, A11 तक है बच्चे। ये हो गया A10, ये हो गया A11 और ये बन गया B। सिमिलरली सिमिलरली ये हो गया A, और क्या चाहिए बच्चा, H1 है बच्चा, H1 H2 H3 H4 H10 H11 एंड B। अब क्या चाहिए बच्चा, देखो तो A1 4 है बच्चा, A1 4 है क्या, A1 H1 4 है। अच्छा क्वेश्चन में A1 H1 4 है बच्चे, तो A1 H1 4 है, ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं है। ये अपने पास 4 है बच्चा, ये अपने पास 4 है, और ये अपने पास कितना बच्चे, ये अपने पास 9 है बच्चे। कुछ नहीं करने का, आप जानते हो क्या, आप जानते हो ना, इसके साथ ये लेंगे A1 H1 लेंगे, 11 लेंगे, A1 H11 या A2 H10 या A3 H कितना 9 डॉट 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 H1 A10 A11, ऐसे लोग छे। देखो तो दोनों का सम 12 हो रहा है ना, हो रहा है, ये बन गया आपका ए बी, यही आंसर हो गया बच्चे, तो ये बन गया आपका ए बी। अब आपको चाहिए क्या बच्चे, आपको चाहिए A4H8, A4H8 चाहिए बच्चा, तो A4H8 की बात करेगा, तो ये भी हो गया आपका ए बी हो गया बच्चे। ए बी यहाँ पे और गलती से यहाँ पे A1 H1 दिया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या हो बच्चे, तो ये हो गया A1 HN ए बी, तो यहाँ हो गया बच्चे। देखो तो इस फॉर्म में यहाँ पे ले लिया आपने 4 × 9 ये हो गया 36। देखो तो ऑप्शन है क्या, ऑप्शन हो गया 36, ऑप्शन हो गया 36 राइट, और ये हो गया अपने पास, ठीक है बच्चा। A2 से दिस था, ये लिया गया, तो ये भी हो गया आपका, ये गलत हो गया, ये 6 सही है बच्चा, और ये भी सही हो जाएगा, हाँ या ना, ये आंसर हो गया, सिंपल आंसर, हाँ या ना। तो ये कंडीशन देख लो बच्चे, इस कंडीशन को दोबारा अपन यूज़ करेंगे, किसी क्वेश्चन में उठा लेता हूँ उसको मैं, किसी क्वेश्चन में अगर यूज़ करना पड़े तो अपन काम कर लेंगे। अगला क्वेश्चन भी लगता है सेम है बच्चा, अगला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न है। अगले क्वेश्चन में अपन लिखेंगे क्या, अपन लिखेंगे बच्चे क्या, इसको ऐसे लाता हूँ मैं, देख तो बच्चे यहाँ से फिर से लाओगे, A1 कितना बच्चे, A2 है बच्चा, ये अपने पास 2 है, ये अपने पास 2 है बच्चा, और ये अपने पास कितना 3 है बच्चे, ये 3 है बच्चा। तब चाहिए क्या, A4 H7 चाहिए बच्चा, तभी तुरंत दिखा आपने। A1 H10 10 है ना, यहाँ 10 तक था बच्चा, यहाँ ये आपके पास नहीं है, इसके पास ये नहीं है बच्चे, इसको हटा दो, इससे हटा दो बच्चा, इसको हटा दो आप, तो बस ये हटा दो। अब ये क्वेश्चन में है, तो यही बी है बच्चे, मान लो इसको बी मान लो, इसे भी हटा दो बच्चे, इसे हटा दो, अब इसे ए मान लो बच्चा, इसे ए मान लो, ये नंबर हो गया ए, ये नंबर हो गया बी बच्चे। तो देखो तो क्या करने का, इसे हटाइए बच्चे। अब यहाँ से कुछ भी लोगे आप, यहाँ से लोगे A2 लोगे, तो इसका ठीक पहले हो गया H9, A2 H9 बराबर हो गया ए बी, A3 H8 A4 H7 सब ए बी होगा, सब ए बी होगा। चेक करो क्या चाहिए,
यहाँ से अपन A4 H7 चाहे बच्चा, ये भी हो गया ए बी, तो ये बनेगा कितना 2 और 3 है बच्चा, तो ये अपने पास 2 है, ये अपने पास 3 है, तो ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 6, हाँ या ना। सिंपल क्वेश्चन था, कंसेप्ट चाहिए तो क्वेश्चन आसान लगेगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे वही उसी क्वेश्चन का भाई है। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए कितना अच्छा है बच्चे, APGP भी है, साथ साथ इंटीग्रेशन का यूज भी है, क्वाड्रेटिक का यूज भी है, एक साथ 3 काम, एक बाम 3 काम, तो एक साथ 3 काम हो गया बच्चे। तो फिर से उस कंडीशन को उठा कर लाते हैं बच्चा, तो उसको फिर से क्यों लाते हैं, अपन ऐसे लिखे बच्चे, A और B है बच्चा बीच में, तो ये हो गया A, यहाँ से लिखोगे A1 A2 A3 डॉट 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 डॉट, यहाँ लिखोगे कितना A9 तक है बच्चा, तो ये हो गया A8 A9, ये बन गया B, ये बन गया B। अगेन इसको फिर से लाओ बच्चे, ये हो गया बच्चा, अब यहाँ से लाओगे H1 H2 H3 H8 H9, ये हो गया B बच्चे, कुछ नहीं करने का। अब देख बच्चे क्या करोगे आप, इसका A1 ले लोगे, इसके साथ H9, इसका A2 ले लोगे, इसके साथ H8, इसका H1 लोगे, इसके साथ दिस वन, इसका A2 लोगे, इसके साथ दिस वन, ऐसे चलेगा बच्चा। तो यहाँ लिखते A1 H9 A2 H8 A3 H7 दिस ऑल, ऐसे लेके चलो बच्चे। तो कहाँ तक जाएगा बच्चा, ये बनेगा आपका AB। तो आपको चाहिए कहाँ तक बच्चे, देखो तो कहाँ तक चाहिए था, A9 तक था ना, बिल्कुल सही है बच्चे। अब उसके बाद अलग से है G1 G2 G3 भी है बच्चा, तो G1 G2 G3 आप जानते ही हैं। तो G1 G2 G3 क्या है बच्चा, G1 G2 G3 G4, ऐसे लाओगे। G कहाँ तक बच्चे, देखो तो G9 तक है बच्चे, G9 तक है बच्चा, तो अपने पास क्या हुआ, रूट AB टू दी पावर 9 हो गया बच्चे, दिस वन। अब यहाँ से ठीक कर बच्चे, अब अपने पास है कंडीशन, अपने पास है एक तो कंडीशन यहाँ है दिस वन, इसको उठा लो बच्चे, ये उठा लो आप ऐसे, ये कंडीशन है बच्चा। अब यहाँ से देखो बच्चे क्या करने का, इसको खोलोगे तो ये हो गया आपका A1 A2 A3 A4, ठीक है ना। इसकी बात करोगे तो H9, तो ये हो गया आपका H9 H8 H7 H6 इनटू, इसकी बात करोगे तो क्या हो, 1 2 दोगे तो ये हो गया G8 G6 G4 एंड G2, दिस इक्वल्स टू 4 टू द पावर 2n है बच्चा। कुछ नहीं करने का। अब जा देखते बच्चे क्या किया, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, ऐसे लोगे तो देखो बच्चे क्या बनेगा अपने पास, A1 H9 A2 H8 A3 H7 A4 H6 इंटू G2 G4 G6 G8, ये हो गया आपका 4 का पावर 2n। देख बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास AB बनेगा, हाँ या ना। AB है क्या, अच्छा AB है बच्चे, तो ये अपने पास हो गया AB टू द पावर 4 हो गया, 1 2 3 4, AB का पावर 4 हो गया बच्चे, इनटू इसकी बात कर बच्चे G2 की बात करेगा तो 4 प्रोडक्ट है बच्चा, तो यहाँ से अपने पास क्या हो बच्चा, ये रूट AB का स्क्वायर है ना, तो 2 का डिफरेंस है बच्चा, 2 का डिफरेंस है, G2 है G4 है G6 है G8 है, तो ये अपने पास हो गया बच्चे क्या, AB का पावर 4, तो ये हो गया अपने पास, नो AB का पावर 4 नहीं, ये हो गया स्क्वायर रूट हुआ बच्चे, स्क्वायर रूट का पावर 4, तो क्या हो गया बच्चे, देखो तो ये बनेगा AB टू द पावर 6 और ये बनेगा अपने पास 4 टू द पावर 2n, इसको मान लीजिएगा ये। अब देख बच्चे और है कुछ क्या, एक कंडीशन और है बच्चा, एक कंडीशन देख बच्चे क्या अपने पास है। अब ये कंडीशन दिया हुआ है ऐसा, ये कंडीशन दिया हुआ बच्चे A and B आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, A and B आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब इसको ठीक कर बच्चे, इसी क्वेश्चन में ऐसे ला, A and B आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ से देखो बच्चे A और B रूट्स है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बच्चे, यहाँ से लिख दो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या लिखोगे आप, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखोगे AB, ये हो गया 0 to 8 पाई मोड ऑफ साइन 4x dx, साइन 4x हो चाहे कुछ भी हो, चाहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, साइन में इंटीजर ऑफ x रहेगा,
है ना। तो उसके लिए वैल्यू क्या हो बच्चे, इसका वैल्यू हमेशा 2 होता है बच्चा, पता है ना। 4 के प्लेस पे n रहेगा नेचुरल नंबर, तो इसका वैल्यू केवल 2 हो बच्चे। तो ये बन गया 16, तो ये बन गया 16। तो अब इसको ठीक कर बच्चा, 16 आ गया, तो ये हो गया 16 का पावर 6, तो ये हो गया 16 का पावर n, तो n बराबर हो गया 6, हाँ या ना। 4 का पावर 2n था, तो 16 का पावर n हो गया, आंसर हो गया n का वैल्यू 6, हाँ या ना। सही है, आया मजा ना। तो ये क्वेश्चन हो गया एडवांस का, ये क्वेश्चन हो गया एडवांस का। मजा आ रहा है? शो थम्स अप साइन। साक्षी, सुजल, सेजल, ठीक है, श्वेता, सुहानी, सुहानी, ठीक है, नितेश आनंद, गुडना, जयदीप, हिरल, आदित्य, चल देख बच्चे, सूर्यांश, सूर्यांश आर यू देयर, सूर्यांश आर यू देयर, शो थम्स अप साइन। गुड बच्चे, आइए नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट देखोगे। अब ये क्वेश्चन देख बच्चा, सेम पैटर्न आ गया, फिर सेम पैटर्न आ गया बच्चे, देखोगे वही सेम चीज़ है बच्चा। A1 A2 फिर से लिखोगे यहाँ से, ये हो गया A, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया B, फिर से आ जाए A, यहाँ हो गया H1, ठीक है, H1, ये हो गया H2, ये हो गया B, इसके साथ ये लोगे, इसके साथ ये लोगे, तो देख बच्चे A1 H2 A2 H1 दिस इक्वल्स टू AB, हाँ या ना। और G1 G2 भी है G1 G2 बच्चे, तो रूट AB है उसका होल स्क्वायर, ये भी हो गया, ए भी हो गया बच्चे, बिल्कुल सही बच्चा। तो देख तो बच्चे क्या चाहिए, A1 H2 AB है क्या, अरे वाह है बच्चे। A2 H1 AB है क्या, ये भी है, ये भी है, तो ये गलत हो गया, पहला गलत हो गया। कितना सिंपल है। आपको लगा सर ऐसे क्वेश्चन एडवांस में आते हैं क्या, ऐसा मीन्स में आता है क्या, बेटा यही सब आ रहा है बेटे। आपको टफ आसान लग रहा है क्योंकि तरीका आसान है, यही क्वेश्चन आप बुक से बनाओगे टफ लगेगा। अब आप PYQ सारा बना जाओ, आज के आज PYQ बच्चे सीक्वेंस सीरीज सेकंड डे हो गया आज, सीक्वेंस सीरीज का PYQ उठाइए। लास्ट आपका जो है 2025 जो भी आपका पेपर हो, 25 कैसे बच्चे 2020 से अभी तक की बात करेंगे तो लगभग 120 पेपर हो गया। अब पूरा बना जाइए आप, लगभग 100 पेपर भी बना जाओ बच्चे, तो आपको दिखेगा कि आपको 80% क्वेश्चन आपका 90% क्वेश्चन बन रहा है, बाकी तो आपको बनानी है बच्चे। सर इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है सर, हाँ बच्चे नहीं हो पाता इतना ज़्यादा, बिल्कुल सही है बच्चे। तो मैंने कहा बाय द वे सीक्वेंस सीरीज में अगर 200 क्वेश्चन है तो आप उसका इवन नंबर निकाल लो, 2 4 6 ऐसे करके वो बना जाओ, तो 100 तो बन जाएगा ना 2 दिन में। एक दिन में 50-60 क्वेश्चन तो बनाएंगे ना बेटा। यही 3 महीने की बात है बच्चे, 3 महीने में आपकी इज्जत जो है या तो अर्श पे, या तो फर्श पे, या तो अर्श पे होगी। 3 महीने की कमाई पूरी लाइफ खाओगे, तो ये 3 महीने आप संभाल दो, ये 3 महीने आपको संभाल देगा। ये 3 महीने को आप संभालो, ये 3 महीने आपको ज़िंदगी संभाल देगा, ध्यान रखेंगे आप, सही है ना। आ जाओ बच्चा, देखते हो बच्चे क्या अपने पास है। अरे वाह, रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इन AP, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इज व्हाट। देख बच्चे क्वेश्चन में क्या अपने पास है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन AP, A माइनस डी, ये हो गया A माइनस डी, A और A प्लस डी। सम ऑफ रूट्स की बात करें बच्चे तो सम ऑफ रूट्स कितना हो गया 144/64, कुछ कटेगा क्या बच्चे, तो ये हो गया आपका 64 62, ये बन जाएगा 32, सही है ना। 2 4 6 बार नहीं 72 ऊपर हो गया 72, ठीक है ना। अब यहाँ से और कट कर बच्चे तो ये हो गया 36, ये हो गया 16, इसको और कट करोगे तो ये हो गया 18 9 36 4 16, ये बनेगा 9/4, ये बन गया आपका 9/4, ये कैंसिल 3A हो गया 9/4, तो A कितना हो गया बच्चे, A हो गया आपका 3/4, ये एक काम बन गया। अब देख बच्चे मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अब एक काम और कर बच्चे, तो यहाँ से फिर से निकालो, प्रोडक्ट निकालो बच्चे, A माइनस डी, A और A प्लस डी, इसकी बात करो बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करोगे तो ये क्या हो गया माइनस प्लस माइनस, तो 15/64, ये हो गया आपका 15/64 हो गया, बिल्कुल सही बच्चा। A अपने पास कितना बच्चे, तो A को हटा दो बच्चा, A को लिख दो 3/4 और यहाँ से लिखोगे 3A² माइनस D², ये हो गया आपका 15/64, तो ये हो गया 16 × 64,
ये हो गया 3 5 15 5, तो 5/16 हो गया बच्चा। ए स्क्वायर की बात करेगा, ए स्क्वायर हो गया 9/16 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 5/16। अब यहाँ से डी स्क्वायर की बात कर बच्चे, तो डी स्क्वायर कितना हो गया, तो ये हो गया 9/16 से 5/16 गया बच्चे, तो 4/16, तो ये हो गया आपका 1/4। तो डी का वैल्यू आ गया, दो वैल्यू आ गया, एक बार आ गया 1/2, एक आ गया -1/2, हाँ या ना। अब देख बच्चे, अब क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अब देखिए कुछ नहीं करने का, लार्जेस्ट क्या है बच्चे ए प्लस डी, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अरे यार तो सिंपल है यार, क्या पूछना चाह रहा है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रूट। लार्जेस्ट रूट की बात करेंगे तो रूट हमारा हो गया ए प्लस डी, अब माइनस ए माइनस डी, ये तो इसकी बात कर रहा है बच्चे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रूट इज ए प्लस डी माइनस ए माइनस डी, ये अपने पास आ गया, हाँ या ना। तो ये अपने पास हो गया बच्चे ए प्लस डी और ए माइनस डी आ गया बच्चे, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो इसकी बात करूँ तो सीधे 2 आ गया यार, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे होगा भाई। देखते हैं, चलो आ जाओ बच्चा, ये कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा आपका 2D, ये 2D हो गया बच्चे, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो 2D हो गया बच्चे, तो 2D हो गया 1, आंसर 1 है। अरे यार क्या यार, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा बच्चा, आंसर हो गया 1, कितना सिंपल क्वेश्चन है। इज इट ओके ना। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आ जाओ बच्चे, देखो क्या करने का। यहाँ से क्या करोगे, A1 A2 A3 जीपी में है बच्चा, क्या कंडीशन है, जीपी में है, तो यहाँ से इसका देखो, तो अब इसको ठीक करोगे, A2 प्लस A4 प्लस A6 अपॉन A1 प्लस A3 प्लस A5, दिस इज 1365 एंड दिस इज 455, राइट ना। ये हो गया बच्चे AR क्यूब AR5, ये हो गया A प्लस AR स्क्वायर AR4। तो देखो जी कुछ कट जाएगा, क्या ऊपर से कैंसिल होगा, बचेगा R बचेगा बच्चे, तो यहाँ से हो गया 4 × 12, 5 × 15, 16, 3 से कट जाएगा बच्चा, 3 हो गया, ये R हो गया 3, तो क्या चाहिए, रेशियो। अरे यार ये भी क्वेश्चन सिंपल था भाई, ये भी क्वेश्चन सिंपल था। अब आ जाए नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट देखो, तो 6th टर्म ऑफ AP इज दिस वन, इफ द क्वांटिटी दिस इज मिनिमम। हाँ ये मजा वाला क्वेश्चन है ये। आधे बच्चे देखता हूं मैं, क्या किया आपने, कुछ नहीं करने का, 6th टर्म ऑफ AP इज दिस बच्चे इज 2, तो T6 हमारे पास है A प्लस 5D इज 2, राइट। यहाँ से अपना काम बनेगा बच्चे, एक क्वेश्चन का पार्ट बनाइए, इससे ले लीजिए नंबर 1, इफ द क्वांटिटी A1 A4 A5 इज मिनिमम, इसको P मान लो बच्चा, इसको मिनिमम बनाना है। A1 अपने पास क्या बच्चे, देखो तो A1 हो गया फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हो गया 2 - 5D। A4 क्या हो बच्चा, A4 हो गया आपका A प्लस 3D, ठीक है ना। A5 कितना हो बच्चे, A5 हो गया A प्लस 4D, सबको A हटा दो बच्चा, तो A को हटाओगे तो P बराबर हो गया आपका 2 - 5D। A की बात करोगे तो A हो गया आपका 2 - 5D, A हो गया आपका 2 - 5D। अब चेक कर बच्चे क्या बनेगा, तो ये हो गया 2 - 2D, ये बनेगा 2 - 2D, ये बनेगा 2 - D। तो यहाँ से 2 बाहर निकाल लो बच्चे, तो ये बनेगा आपका 2 बाहर निकालोगे तो ये 1 - D, 2 - D एंड 2 - 5D, ये कंडीशन बना। अब तो सिंपल आ गया, अब इसको इसका चाहिए क्या बच्चे, मिनिमम वैल्यू चाहिए, इज मिनिमम, इसका मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम की बात कर रहा है। देन कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, जब सब मीन निकालने का मतलब हो गया मैक्सिमम मिनिमम की बात कर रहा है। तो देखो बच्चे अब यहाँ से निकालना क्या है, DP/DD निकाल लो बच्चा। इसको पहले ठीक करते हैं, तो ये बन गया अपने पास 2 - 2D और दिस -3D D स्क्वायर 2 - 5D। अब देख तो बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा 2 × यहाँ से बनेगा 4 - 3D -6D, अब यहाँ से -6D
ठीक है ना। अब प्लस 10d माइनस 10d माइनस 16d माइनस 16d, ओके। एंड अगेन 2d स्क्वायर राइट, प्लस 15d स्क्वायर, तो 17d स्क्वायर, 17d स्क्वायर, एंड अगेन माइनस 5d क्यूब, माइनस 5d क्यूब, ये रहा बच्चे अपने पास। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर बच्चा, डिफ्रेंशिएट करेगा तो पहला 0 हो गया बच्चे, तो ये हो गया 2 इंटू 0 माइनस 16 प्लस 34d माइनस 5 से 15 माइनस 5 से 15d स्क्वायर, दिस वन, ये रहा बच्चे। अब इसको कुछ नहीं करने का, इसको 0 करोगे, तो अब इसको 0 करो बच्चे, तो देखो तो कुछ कॉमन लोगे क्या, 2 हट जाए, 2 अपने पास था ही, माइनस निकाल लो बाहर, 15d स्क्वायर माइनस में 34d और प्लस में 16 माइनस बाहर निकाल लिया बच्चे, बिल्कुल सही है। इसको 0 कर बच्चा, इसको 0 करोगे तो देखते बच्चे कितना बनेगा, बनेगा क्या, 15 और 16 बच्चे, 15 और 16 है तो अपने पास हो गया 15 चौ 60, 60 और 4 नहीं बनेगा, बनेगा क्या, यहाँ से डी निकाल लो बच्चे, यही तो निकालना आपको, डी निकालना है ना, हेलो डी ही निकालना है जहाँ पे मिनिमम होगा। तो डी हो गया 15 गुने 4 गुने 4, तो 15 दूने 30 और 8, 30 बनेगा और बनेगा 8, तो ये हो गया दिस वन, नई बात बन रही है। 15 चौ 60 करेंगे तो बात नहीं बनेगी, 4 चौ 16 और 15 31 होता है, 31 होता है, तो 31 है क्या, 17 दूने 17 है, तो 17 दूने 34 हो रहा है बच्चे। तो जो भी होगा बच्चे, देखो तो जो भी होगा यहाँ से क्या निकालोगे, इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकाल बच्चे, देखो तो वैल्यू क्या अपने पास आया, इसका वैल्यू निकाल देंगे आप, तो डी का वैल्यू निकालते हैं अपन, यहाँ से इसको 0 करेंगे तो डी का वैल्यू अपने पास आ गया माइनस बी, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 34 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू 15 इंटू 16, 15 चौ 60, 16 चौ 64, सही है, सही बच्चा। 4 इंटू ए इंटू दिस बाई 2a तो बाई हो गया 30, यहाँ से डी निकल गया बच्चा, यहाँ से डी निकल गया बच्चा, यहाँ से डी का जो भी वैल्यू आ जाए, अल्फ़ा बीटा जो भी आ जाए बच्चा, अल्फ़ा बीटा जो भी आ जाए वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, वही आंसर हो जाएगा बच्चे। इज इट ओके, वही आपका आंसर निकाल लोगे आप, सही है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, आज का आखिरी क्वेश्चन, इसे बना दें, मैं जान रहा हूँ बच्चे टाइम ज़्यादा हो गया। लेट GN बी द nth फॉर्म ऑफ GP, ये दिया बच्चे, GP की बात कर रहा है, तो देख बच्चे क्या बोलना चाह रहा है बच्चे, ऊपर ले लो आप जी ऐसे, पाई ऑफ G2R बाई पाई ऑफ G2R माइनस 1, ठीक है ना, 100 तक है बच्चा, R हमारे पास कहाँ है, R है 1 to 100, R है 1 to 100 तक, ऐसे है बच्चा। इसकी बात करोगे तो ऊपर हो गया आपका G2, G4, G6 डॉट डॉट G कितना बच्चे, G हो गया 200 तक, बिल्कुल सही है। नीचे हो गया आपका G1, G3, G5, G7 इंटू कहाँ तक बच्चे, ये हो गया आपका G कितना 200, तो 199 बच्चे, 199 है, ये बराबर हमारे पास है अल्फ़ा बाई बीटा। अब देखो बच्चे यहाँ से देखो तो ये कटेगा तो यहाँ बनेगा R, ये कटेगा तो यहाँ बनेगा R, ये कटेगा R बच्चे, तो R का पावर हो गया 100 इक्वल टू अल्फ़ा बाय बीटा, तो यहाँ से क्या हो गया बच्चे, R हो जाएगा अल्फ़ा अपॉन बीटा टू दी पावर 1/100, ये आंसर हो गया। चेक करो है क्या, है ना, ऊपर हो गया अल्फ़ा, ऊपर अल्फ़ा है क्या, ऊपर अल्फ़ा है बच्चे, तो आपका आंसर हो गया बी, हाँ या ना। इज़ इट ओके टू ऑल, इज़ इट ओके टू ऑल, इट्स ओके माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम। कल फिर मिलते हैं बच्चे, कल एक काम करते हैं, मैट्रिसेस से क्लास कर लेंगे, है ना, कल स्टार्ट करें मैट्रिसेस, इसका एक क्लास मैं अलग से बना के डाल दूंगा, ठीक है ना, या जैसा वो देखते हैं, अगर आप परमिशन दोगे तो इसका एक क्लास और ले लूँगा। वैसे डिसाइड था 60 लेक्चर में, लेकिन मैं देख रहा हूँ लेक्चर भाग रहा है बच्चा, एडवांस के थोड़ा सा और क्लास सही इसमें। इट्स ओके माय डियर, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।